Good morning, students. This is KK Bhatt here. Dear students, once again I am here of class 10th of English based to MCQ. Dear students, in the previous video, I taught you how to solve dialogue based question. Now, you know that in your coming examination, the question has been asked on the basis of MCQ. So you have faced some challenges, and I know that many students can able to complete this all. So now I just here to solve the problem. See here, that is question number 7. That is based to the English. Suppose that look here a sentence. A sentence of ego. Uh, Look here a sentence. Mohan said. Mohan said. We dash go to see the task. Go to see the task on the moon. On the moon lit night. On the moon lit night. On the moon lit. Options are given like that. Option 1, A, that is sad. Option B, that is May. Option C, that is must. And option D, that is can. Dear students, you can see here. Here are given a sentence that is based to direct speech. Mohan said, "We go to see the stars on the moonlight." Moonlight night. He was planning here. Mohan is planning here. वो योजना बना रहा है कि we go to see the stars on the moonlight. So you can understand here the sense of future. The sense of. Now see the option. How will we choose the correct answer? कैसे हम correct answer choose करेंगे? Only one sentence has been given from future, that is sad. So your answer is what? Sad. So what your answer? Sad. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. आप यहाँ लिखते हो क्या? वी sad. ये आपका जो होगा ऑप्शन करेक्ट. इट इज क्लियर. तो हाउ विल वी डिसाइड here which word is correct? Because the on the moonlight that is preparing for future. So we can use here sad. Okay. ऐसे में now see the second question. हम दूसरे future की बात करते हैं. Now we are talking about the second question. See here, he dash his servant. Use comma. Why? He was so lazy that day. Why he was so lazy that day? Why he was so lazy that day? Options are given here. Option A, replied to. Option B, asked. Option C, interrogated.
इंट्रो इंट्रोगेटेड and after day inquired inquired. Now we have to choose the correct option from these four options. First we are discussing about the sentence. हम sentence पे discuss करेंगे. यहाँ कह रहा है he here given as his servant. What here use why? Why that is the connecting word. तो जब कनेक्टिंग वर्ड वाई है इट इंडिकेट्स अबाउट द आप जानते हो वाई जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के होते हैं तो उनको एज ए कनेक्टर हम यूज करते हैं. क्लियर हो गया. तो इट इज क्लियर ये कंफर्म हो गया कि दिस सेंटेंस बेस्ड टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस. दिस सेंटेंस बेस्ड टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो आप देख सकते हो कि जो सेंटेंसेस है किसको बेस कर रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बेस कर रहा है. राइट. तो आप जानते हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम रिप्लाई लगा नहीं सकते. आंसर आपका सही होगा. इंट्रोगेटिव लगा नहीं सकते. इंक्वायर्ड ऑफ होता है इंक्वायर्ड नहीं होता. तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर बी. तो आपका आंसर हो जाएगा आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी. ये आपका क्या होगा ऑप्शन. I hope it is clear how to attempt this MCQ question. Now we are going to see the next question. हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 that is also based to narration. अब हम बात करते हैं नरेशन की MCQ क्वेश्चन की. तो अब देखेंगे आप ये है the judge said to the accused. The judge said to the accused. समझते हो व्हाट इज मीनिंग ऑफ accused? Accused. The judge said to the accused. Judge said to the accused. जज क्या कहता है आप देखोगे आप क्रिया है कामा इन्वर्टेड डैश आपको दे दिया है योर टर्न वाई ओ यूर योर टी वेर जी यू योर टर्न. अब देखो यहाँ पे जज है डाउटली वो ऑर्डर ही देगा एक्यूज्ड को ऑर्डर देगा आदेश ही देगा. अब यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से हमारे सामने आते हैं. पहला ऑप्शन ए जो है ये की हम बात करते हैं यहाँ दिया हेड. बी की अगर हम बात करते हैं तो बी में दिया है किक. सी की अगर हम बात करते हैं वो दिया होल्ड. और डी की बात करते हैं तो डी में दिया है स्टॉप. अब देखो यार ध्यान से हियर गिविंग 4 ऑप्शन हेल्ड किक होल्ड स्टॉप. आप देखोगे ये जो सेंटेंस है ये इंप्रेटिव सेंटेंस है. ये जो सेंटेंस है ये इंप्रेटिव सेंटेंस है. दिस इज द इंप्रेटिव सेंटेंस. अब आपको यहाँ पे चूज करना है तो आप इंप्रेटिव सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है. ठीक है. यहाँ जो वर्ब यूज होगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा. B1 यूज होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज. अब आप ध्यान से देखो हेड एट इन द सेकंड फॉर्म में तो होगा नहीं. कीप योर टर्न टर्न को कीप नहीं किया सकता. अगर होल्ड स्टॉप नहीं किया सकता. होल्ड किया सकता मतलब कंट्रोल योर टंग होल्ड योर टंग. अपने जुबान को संभाल लो होल्ड योर टंग. ठीक है. तो अब आप देखें यहाँ पे तो अब हो जाएगा क्वेश्चन द जज सेड टू द एक्यूज्ड. द जज सेड टू द एक्यूज्ड होल्ड योर टंग होल्ड योर टंग. इस तरह से आपने होल्ड देखा तो होल्ड आपका सेंटेंस क्या होगा करेक्ट होगा. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. कुछ समझ में आ रहा है. अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं कैसे हम डिफाइन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4
It's very important to know the reason in back of question. In back of question, क्वेश्चन के पीछे जो रीजन होता है, we have to understand well, उसको हमको समझना होगा. अब आप आगे देखेंगे दिया है she said come I heard come my parents अब आप देखो दे दिया कराची KARAC ओके माय पेरेंट्स कराची. अब आपको यहाँ पे ढूंढना है, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो आपको देखना है. विल गोइंग टू बी ऑप्शन में हम बात करते हैं गोइंग टू. सी ऑप्शन की हम बात करते हैं फ्यू और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो वर गोइंग. सी जो आपका वर गोइंग टू और डी ऑप्शन की हम बात करते हैं ये आर गोइंग टू. आर students, now we are discussing, now we are analyzing the sentence. और sentence analyze करो. My parents, he said my parents. उसने कहा मेरे पेरेंट्स. देखो दिया will going to sentence होता नहीं, will be going होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया. gone भी ऐसे नहीं आता, ठीक है. तो my parents were going to. अब ये जो भी प्लानिंग बना रहा है, ठीक है, उसने कहा कि मैं जा रहा है, ये प्लानिंग बना रहा है, तो प्लानिंग में वर गोइंग टू नहीं आएगा, ठीक है. ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, तो यहाँ पे वर गोइंग टू नहीं आएगा. अब देखेंगे आर गोइंग टू, तो ये आर गोइंग टू जो होगा अभी वो आपका सही होगा. क्यों? जैसे आप मान लो आप कहते हो कि टुमारो वी आर गोइंग टू गोवा, कल हम लोग गोवा जा रहे हैं, तो क्या सेंटेंस लिखते हो? वी आर गोइंग टू गोवा टुमारो. तो ये फ्यूचर प्लान की बात करते हैं. जब फ्यूचर प्लान की बात करते हैं तो वहाँ पे हम आर गोइंग लगाते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ आर गोइंग टू, आर गोइंग टू. तो इस तरह से आप देखेंगे जो सेंटेंसेस आपके हैं वो ऐसे अटेम्प्ट करने हैं, जो आपके सामने 4 सेंटेंस में दिया है. विदाउट नोइंग द रीजन what type of sentence, which option is correct, is necessary to understand. Then after we can able to give the righteous answer. अब हम बात करते हैं कुछ और सेंटेंसेस की बात करते हैं. 2-4 और सेंटेंस देख लीजिए. जैसे अब ये आसान थोड़े सेंटेंस आपको दे रहा है, आई होप आपको कुछ समझ में आएगा. तो आप देखिए 2 सेंटेंस और देख लीजिए. तो आप देखिए दिया है he said that, that is something that आता है, he said that, he said that, he लगा दिया है, इसके बाद डैश दे रहा है. get up early in the morning, EARLY, early in the morning, early in the, he get up early in the morning. वो आप देखोगे ऑप्शन दिया है, पहला दे दिया है मस्ट, ये आपका ऑप्शन. बी से दिया है वुड, सी आपको दिया है कैन और डी आपको दे रहा है इज टू. अब यहाँ अगर ऑप्शन की हम बात करते हैं, आई थिंक दैट वुड जो होगा आपका करेक्ट होगा. आप पूछ सकते हो क्यों? क्योंकि यहाँ भी फ्यूचर की बात कर रहा है, क्या विल होना चाहिए. ही विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह उठेगा. लेकिन चूंकि यहाँ सेट लगा हुआ है, दैट इज इंडिकेटेड व्हाट पास्ट टेंस, तो हियर वी यूज वुड नॉट वुड. तो ये आपका सेंटेंस क्या होगा? ही वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अब ना अगला सेंटेंस और देखेंगे.
5 6 6 में देखा है कुशल आस्क्ड मी कुशल आस्क्ड मी comma inverted comma you see the cricket match you see the cricket match on TV last night on TV last night Kushal asked me, "You see the cricket match on TV last night?" अब आप देखेंगे यहाँ दिया है एट लास्ट आपके सामने क्वेश्चन मार्क दिया है। अब देखिए सेंटेंस जो लास्ट है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, पास्ट टेंस को इंडिकेट राइट। अब यहाँ जो आएगा हेल्पिंग वर्ब पॉइंट आउट पे किसका होगा? किसी न किसी पास्ट टेंस का ही वहाँ पे ऑप्शन फिट होगा। क्योंकि लास्ट नाइट दिया है तो लास्ट नाइट आपका जब इंटैक्ट बनाएंगे तो प्रीवियस नाइट में कन्वर्ट होगा। तो अब आप देखते हैं चार ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, आप बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए जो आपका है विल दिया हुआ, बी जो आपका डिड होगा और सी जो आपका है वो सेल दिया हुआ और डी आपका जो है वो आर दिया हुआ। अब ध्यान से देखेंगे ये और ये फ्यूचर का डेट जो होगा तो डिड यू सी द क्रिकेट मैच लास्ट ऑन टीवी लास्ट नाइट। तो ये जो सेंटेंस आपका होगा वो करेक्ट होगा, जो कि इंडिकेट कर रहा है किसको? पास्ट टेंस को। तो पास्ट टेंस का एक ही सेंटेंस यहाँ दिया होगा वो है डिड। अब डिड को अगर आप लगाते हैं तो आपके सेंटेंस 100% सही होगा। टुडे स्टूडेंट्स, टुडे जस्ट आई एम जस्ट टीचिंग यू how to solve MCQ question based on narration. If you know every term and condition of narration, you can able to solve any question without any hesitation. But we have to understand the sense of sentence. We recognize every word because every word is important to tell about tense. To tell about tense on the basis of sentence and tense, we decide the helping verb as reporting of a verb, and also whenever we need to know which type of helping verb we are used, that is the sentence that is also tell us as last night, that is indicative of the date. So I hope this video is beneficial to you. You get a lot of benefit to see this video. Thanks to watch my video.